Hello friends, I am Professor Nancy Kasagra and we are studying the subject Cyber Law and Ethics. In this particular subject, currently we are studying the chapter number 2, which is regarding the Information Technology Act 2000. So in previous lecture, we studied about this act, how it is established, who apply this act in 2000 and who give the permission to this act, and there are some different sections which is mentioned under this act, and what are the penalties or what are the imprisonment for that. So we have shown the act like 66, 67, right? If someone is stolen your computer and then do some cyber crime, then some people are stealing your personal data and through that if they harm you, so उनके लिए कौन से टाइप के लॉ है, कौन से सेक्शन के अंडर उनको पनिशमेंट मिलेगा, कौन से सेक्शन के अंडर उनको पेनल्टीज लगेगा, और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्राइम उनकी पेनल्टीज थी और उनके इम्प्रिजनमेंट थे कि कितने साल की उनको जेल होगी. So in previous lecture we have gone through all of the topics. So now, in this particular session, we are going to discuss about the amendments and limitations of that IT Act 2000. So, amendments and limitations of the IT Act, right? So, before studying that amendments and limitations, let's see some features key which is provided by the IT Act. So, IT Act provides us an digital signature. So, digital signatures has been replaced with an electronic signatures to make it more technological. Natural Act means कि जो हमारी regular signatures है उनको हमने उन electronic signatures को हमने replace किया with the digital signature for the more security concern. Second one is it provides the justice dispensation system for cyber crimes. Third one is they have added it some new sections regarding use of the cyber cafe, because cyber cafe are the public places जहाँ पे कोई भी इंटरनेट का यूज करके किसी पर्सन को ऑफेंड कर सकता है, might be possible कि वहां से कोई क्राइम भी हो सकता है. So regarding that they have made some new sections for particularly public places like cyber cafes जहाँ से इंटरनेट एक्सेस होता है. Then it also provides the constitution of the cyber regulators advisory committee. So they are providing some constitutions for that too. उसके अलावा जो ये पूरा एक्ट बना है वहाँ उसमें कौन से एक्ट का रेफरेंस लिया गया है. तो IT Act 2000 जो बनाया गया है that is based on the Indian Penal Code 1816 में आया था. Second one is the Indian Evidence Act 1872 में आया था. Then third one is the Bankers Book Evidence Act 1891 में जो आया था. And the last one is the Reserve Bank of India Act 1934 में जो एक्ट आया था. तो ये जो 4 डिफरेंट टाइप के एक्ट्स है जो डिफरेंट ईयर्स में एस्टेब्लिश हुए थे, उनके बेस्ड पे इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 क्रिएट किया गया था. एज वेल एज इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में उन्होंने एक सेक्शन 81 भी ऐड किया था. दैट सेक्शन प्रूव्स कि the provisions of the act shall have overriding effect, and the provisions state that nothing contained in the act shall restrict any person from the exercising any right conform under the Copyright Act 1957. कि 1957 का जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिसिंग या कोई एक्सरसाइजिंग इज नॉट कंटेन इन दिस एक्ट, एंड उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट को सेक्शन 81 में ऐड किया गया था इन एक्ट 2000 में. एंड जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि डिफरेंट टाइम के क्राइम्स होते हैं थ्रू द साइबर क्राइम.
तो उन साइबर क्राइम के बाद या तो कोई ऑफेंसेस हुए हैं या तो कोई ब्रीचेस हुए हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट उनकी पेनल्टीज क्या होगी और उनको कितनी सजा मिलेगी, वो सारी चीजें इंडियन एक्ट 2000 में कंसिडर की गई है. So these are the features which is provided by the IT Act 2000. After that, the topic is application of the Information Technology Act 2000. कि ये जो IT Act 2000 है, इसकी applications क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कि इसकी जो schedules है वो किन्होंने प्रोवाइड किए थे, कि जो इसका फर्स्ट शेड्यूल था दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. और बेस्ड ऑन दैट आप पूरा एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, कि अगर कोई क्राइम करता है उसको आपने पकड़ लिया तो उन पे कौन सा एक्ट लगेगा, उन पे जो केस होगा वो कौन सी कोर्ट में लड़ा जाएगा. वी हैव प्रीवियसली शोन द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, राइट. तो ये सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल में पास ऑन हुई थी, एंड ये जो फर्स्ट शेड्यूल था दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड दे आल्सो प्रोवाइडेड कि ये जो स्मॉल इंफॉर्मेशन है या नोटिफिकेशन है, एवरी नोटिफिकेशन इशूड shall be laid before each house of parliament. तो कौन सी चीजें हैं, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से ट्रांजेक्शंस है जो ड्यूरिंग दिस एक्ट कंसिडर नहीं होंगे, कि अगर आईटी एक्ट अप्लाई हो रहा है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है. तो द मेन टर्म्स आर की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, ट्रस्ट, विल, कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये सारी चीजें रिलेटेड है देन आपका आईटी एक्ट 2000 might be possibility कि under some terms and under some condition it is not going to work. So negotiable instrument means it is defined in the Negotiable Instrument Act 1881 कि अगर चेक के अलावा किसी और टर्म से क्राइम हो रहा है then it doesn't make sense. तो सेकेंड वन इज पावर ऑफ अटर्नी, जिसको कंसिडर किया है या तो डिफाइन किया है इन द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882. सिमिलरली ट्रस्ट एक्ट, so that is defined in the Indian Trust Act 1882. देन विल के रिगार्डिंग की प्रॉपर्टी की जो विल्स होती है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ होता है दैट इज कम अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925. and might be possible कि they also including any other testamentary disposition. And then after the contract case, if there are some properties like immovable properties है या तो particular properties है जिनके लिए contracts बनते हैं, तो उनके regarding अगर कोई है तो उनके लिए अलग से act है, they are work according to that act. एंड कुछ ऐसे माइट बी पॉसिबल कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांजेक्शंस है, उनको भी आप इस आईटी एक्ट 2000 के अंदर नहीं ले सकते. ओके, सो दैट आर द एप्लीकेशंस, यू कैन सी एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस which is come under the IT Act 2000. After that, we are moving forward to the amendments brought in the Information Act 2000. अमेंडमेंट्स की चेंजेस और चेंज किया हुआ कि जो हमारा ऑलरेडी एक्ट बना हुआ था उसको मोर रिलायबल, मोर एक्यूरेट बनाने के लिए हम उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उस एक्ट में कुछ चीजें बदल रहे हैं. सो दैट इज अमेंडमेंट इन आईटी एक्ट 2000. सो आईटी एक्ट 2000 में ये जो चेंजेस हुए थे वो मेनली 2008 के आसपास हुए थे. एंड दैट इज इन द सेक्शन 91 to 94. उनके जो सेक्शन है उनमें चेंजेस किए थे और वो 4 शेड्यूल्स में किए. सो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या है कि फर्स्ट शेड्यूल है वो आपका कंटेन कर रहा है अमेंडमेंट्स इन पेनल कोड, कि जो पेनल कोड में जो चेंजेस है उसके रिगार्डिंग आपका फर्स्ट चेंजेस था कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्टेड है, सो उसके रिगार्डिंग चेंजेस उसमें आए थे. सेकेंड शेड्यूल इज अबाउट द
अमेंडमेंट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके रिगार्डिंग चेंज आया था कि इट pertains to the inclusion of electronic document in the definition of evidence. Third schedule was about amendments बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है उसमें उसके रिगार्डिंग आईटी एक्ट में क्या चेंजेस आए कि बैंकर्स बुक है। बैंकर्स बुक मीन्स कि पहले जो डेटा था वो पहले बैंक में आपका सारा फिजिकली स्टोर होता था, बट विद द टाइम क्या हुआ उसमें इंक्लूजन आने लगे कि आप उसके प्रिंट आउट्स निकालने लगे। देन यू आर मेकिंग फ्लॉपी डिस्क टैब मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप डेटा स्टोरेज करने लगे। एंड अभी करंटली राइट नाउ इट इज अबाउट टेक्नोलॉजी कि आप डिवाइस में या तो रैम बोल लो या हार्ड डिस्क बोल लो, वहां पे आपका बैंक का सारा डेटा होता होगा, वो स्टोर होता है। तो रिगार्डिंग दैट इफ उसमें कोई चेंज आता है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है या उसके पर्टिकुलर प्रिंट आउट नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट उस पे हम कोई एक्टिविटी जो हमें परफॉर्म करनी है वो करवा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, दैट इज रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसमें चेंजेस आए थे। अगेन रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राइट, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो रहा है या बैंक के बीच में हो रहा है, तो उनके रिगार्डिंग ये जो चार मेन चीजें थी कि पैनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों एक्ट में, इन चारों के जो सेक्शंस है आईटी एक्ट में उसमें कुछ चेंजेस आए थे। तो मेजर वो उसमें चार में चेंज आया था। उसके बाद बोल सकते हो कि दे हैव मेड एन मेजर अमेंडमेंट वाज इन 2008। जैसे मैंने बोला कि जो मेजर चेंज है वो 2008 में आया था, दैट इज रिगार्डिंग द न्यू अप्लाइंग द न्यू सेक्शन कि सेक्शन 66A था हमारा कि अगर कोई आपको ऑफेंसिव मैसेज सेंड कर रहा है या कोई अप्रोप्रिएट मैसेजेस आपको आ रहा है तो उसको नए सेक्शन 69 में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड दे हैव आल्सो गिवन सच पावर्स और अथॉरिटीज टू द इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये दो चीजें वहां पे हुई कि जो हमारा सेक्शन 66A था उसको इंट्रोड्यूस किया गया 69 में और वहां पे उनको कुछ अथॉरिटीज एंड पावर भी दिए गए रिगार्डिंग टू फाइंड और यू कैन से कि डिक्रिप्ट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स। उसके अलावा उन्होंने पेनल्टीज भी इंक्लूडेड किए। कौन से फॉर्म्स में? तो यू कैन से कि जो पेनल्टीज इंक्लूड किए है इंट्रोड्यूस किए 2000 के बाद, that is about terrorism and voyeurism. Terrorism we everybody know कि terrorism के क्या डिसबेनिफिट है और उसका वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट। सो अभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये टेररिज्म है उसमें हमारा साइबर स्पेस भी इन्वॉल्व है। एंड सेकेंड वन इज वॉयरिज्म। वॉयरिज्म मीन्स कि कोई विदाउट योर इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल लाइफ में जांच करता है और उसके रिगार्डिंग वो पब्लिक प्लेस पे नहीं बट आपके प्राइवेट प्लेसेस पे वो जाना पूछी करता है एंड आपकी जो प्राइवेट एक्टिविटीज है उनको देखता है, राइट। सो टू थिंग उसके रिगार्डिंग जो पेनल्टीज थी वो भी 2000 के बाद के एक्ट में ऐड की गई और ये अमेंडमेंट मीन्स ये बदलाव और यू कैन से कि ये नया प्रपोजल आया था 2000 में 2008 में। तो वो 22 दिसंबर 2008 को लोकसभा की डिबेट में बताया गया एंड द नेक्स्ट डे मीन्स 23 दिसंबर 2008 को राज्यसभा में उसको ले जाया गया एंड दे अप्रूव्ड इट एंड at that time our president is Pratibha Patil. So Pratibha Patil signed that amendment law
ऑन 5th February 2009। आप बोल सकते हैं कि ये जो चेंजेस आए उसको 5th February 2009 के बाद एप्लीकेबल किया गया। Okay. So this is about the changes in Act 2008। कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जिसकी वजह से हमें ये चेंजेस लाने पड़े। अब ये बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमेंडमेंट्स इन द आईटी एक्ट 2000, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमने ये एमेंडमेंट्स में चेंजेस किए। सो इन दैट फर्स्ट वन इज की वाइडली यूज ऑफ साइबर स्पेस, और आप बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपको ये सर्विसेज मिल रही है रिगार्डिंग द ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई ट्रांजेक्शन्स और एवरीथिंग, कि अभी कोई भी छोटा काम होता है तो आपकी फिंगर टिप के बेस पे वो हो जाता है कि आपने फोन उठाया, ई कॉमर्स वेबसाइट खोला और कोई चीज परचेज करनी है तो उसको कार्ट में डाला और यू कंप्लीटिंग योर पेमेंट प्रोसेस एंड विद इन अ फ्यू डेज आपकी वो चीज आपके घर पे आ जाती है। सो द वाइड यूज ऑफ ई कॉमर्स एंड ई ट्रांजेक्शन्स की आपका जो मनी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, नॉट इन द थाउजेंड्स ओनली बट लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन है वो भी आपके डिजिटली अभी परफॉर्म हो रहा है। सो उनके हाई प्रेफरेंस यूज की वजह से उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट बनाने पड़े। So one objective is that further if we describe it कि what why we need this, okay, so they have given कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उसका प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन infrastructure is pivotal to a national security, economy, public health, and safety. It has become necessary to declare such infrastructure as a protected system so as restrict its access. कि जो अनरिक्वायर्ड चीजें हैं उन पे आप बैन लगा सको और बच्चों के हाथ ना लगे या तो अडल्ट के हाथ वो चीजें ना लगे। सो उनके फ्यूचर पे हम मेंटली और आईटी के थ्रू भी इफेक्ट ना पड़े, ये चीजों पे ध्यान रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एमेंडमेंट्स की हमारा वाइड यूज ऑफ इंटरनेट। सेकेंड थिंग कि आप जो ये इंटरनेट एंड कंप्यूटर वाइडली यूज कर रहे हो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्राइम भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। क्राइम लाइक आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है उनका काफी यूज हो रहा है। सो उसमें ब्रीचेस आते हैं, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होती है, उसमें डेटा में लीकेज आता है। फिर ई कॉमर्स के रिगार्डिंग जो फ्रॉड्स होता है और उसकी वजह से ई कॉमर्स जो फ्रॉड्स हो रहा है उसमें काफी टाइप के अटैक्स होते हैं, लाइक फिशिंग अटैक है, आइडेंटिटी थेफ्ट अटैक है, ऑफेंसिव मैसेज है। ये सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो और यू कैन से कि पब्लिकली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल्स आ रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू, लाइक मीडिया माइट बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये विदाउट समवन्स परमिशन दे आर अपलोडिंग देयर sexuality videos or personal videos without asking that person, so that is come under as a crime। okay, so ये जो सारे crimes है उनके लिए कुछ ऑब्वियसली पैनल्स प्रोवाइडेड किए गए हैं इस इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में, लाइक आईटी एक्ट 2000, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू प्रिवेंट सच क्राइम्स। तो दिस आर द थिंग्स जिसकी वजह से हमें हमारे आईटी एक्ट 2000 में चेंजेस लाने पड़े कि हमें अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे एक सेक्शन होना चाहिए और जिसके बेस पे हम पर्टिकुलर पर्सन को पनिश कर पाए, उसको पेनल्टी दे पाए। और ऑब्जेक्टिव इज that Union Nations Commission on the International Trade Law जो 2001 में अडॉप्ट करके आपके मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे फोकस किया गया था। सो नो डाउट ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल होती है बट विद डिफरेंट नेशंस एंड डिफरेंट लॉ, उन पे अलग अलग लॉ अप्लाई होता है regarding their activities, either it is your modern law, either it is IT Act, it is regarding your electronic signature, it is regarding your digital signatures कि कौन सा IT एक्ट वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है उसके बेस्ड पे उसका एक्ट बनता है। सो there is one law, model law, which is defined in 2001 by the
UNCITRAL means Union Nation Commission on International Trade Law. And last objective कि ये जो such services are provided by, right, obviously ये कुछ services है या तो ये IT Act law है वो कोई ना कोई provide कर रहा है, so that is provided by the authorization of the central government or a state government कि according to your law कि कौन सा law state government के थ्रू अप्लाई हो सकता है, कौन सा law सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई हो सकता है. So they are keeping eye on that. They set up it, they maintain and upgrade the computerized facilities, and they also collect some appropriate data or charges regarding to this. And they keep an eye on this because the highly use of internet. उसके बाद ये जो लॉ हो रहा है वो हमने सॉरी ये जो लॉ एग्जिस्टेंस में आया है वो क्यों आया है, ये आईटी एक्ट 2000 बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, राइट. हमने प्रीवियसली देखा कि आईटी एक्ट 2000 क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये किसके लिए बनाया है कि टेम्परिंग हो रहा है हमारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स के साथ, हैकिंग हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ. वी आर पब्लिशिंग अनयूजुअल इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड देयर आर सम uncontrollable data provided on the social media, right. So because of all this thing we needed IT Act 2000. So what are the limitations of IT Act 2000? So the first one is that negotiability, the execution of negotiable instrument under Negotiable Instrument Act 1881 accepted the checks. Right, we previously showed this currently कि क्या क्या limitations है कि इंस्ट्रूमेंट के सॉरी negotiable इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, पावर ऑफ अटर्नी के रिगार्डिंग पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 वर्क करेगा. देन ट्रस्ट के रिगार्डिंग है कि क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर इंडियन एक्ट 1882. देन एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल अंडर द इंडियन Succession Act 1925 including any other testimony deposition, right. Then if you are using some central government transactions or documents for particular purposes, so for that IT Act is not applicable. कि अगर ये सारी चीजें हैं कि किसी के पावर ऑफ अटर्नी के रिगार्डिंग बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, अबाउट ट्रस्ट इज देयर, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ट्रांजेक्शन या डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है, सो इन दैट केस आपका आईटी एक्ट 2000 इज लिमिटेड टू वर्क. वो उसकी जितनी लिमिट है उतना ही फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर पाएगा. सो दिस इज अबाउट द अमेंडमेंट की क्या चेंजेस आया हमारे आईटी एक्ट 2000 में एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आईटी एक्ट, और जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि आईटी एक्ट कितना वर्क कर रहा है. So thank you all of you. If you guys have any doubts regarding this, you can put your question in the comment box.